morning to one and all present here. Today we have with us the speakers of today's webinar, Ms. Mansi Joshi from IIM Indore and Ms. Charupreet Kaur from IIM Calcutta. Also, we have with us our host for today, Mr. Amit Kumar Gupta, the CEO and founder of Radoviz. We welcome you. Also, we would like to request all the participants to stay till the end of this webinar, as the link for the certificates will be provided in the chat box at the end of the webinar. Thank you. Thanks, Preeti, and all. So, good morning to all of you present here. I'm Amit Kumar Gupta, founder and CEO of Radoviz. And obviously, today we all gather here for the webinar on how to prepare yourself for IIM. So, at first, I want to clear that you all participants are excited for this webinar. Just type in chat box. If yes, then type yes in the chat box. Excited. Yeah, chat box is for you. Just use your chat box. So that we move further. Okay. I think many participants are joining between us. Yeah, participants, just use your chat box to type yes or no, so that we will start further. You know, if you will charge up, then we will also charge up from you. Webinar should be the interactive, so that you will also learn. Chat box is disabled right now. Chat box is disabled. Okay, fine. Yes. Doing something. Yes, Bhaiya. Yeah, I think now it is okay. Great, great. Great, great. Fine. So, welcome Mansi in the Radoviz webinar. At first, congratulations to you for your selection in IIM Indore, and we will gather more knowledge from here from you. Okay. So, Thank you so much, Amit, for calling me here. yeah, so Mansi. So at first, we want to know about your schooling journey, like where you completed your schooling journey and all. And after that, we will move forward upon our main topics. Yes, sure. Actually, I'm from Indore. My hometown is Indore, but due to some problems, we shipped to a village. It's Khategaon in Madhya Pradesh, and I did my schooling from the same town. My father always believed that I should focus on my current class instead of focusing in the future, and so I stayed focused on 10th board and 12th board. I scored 9 CGPA in 10th and 93% in 12th. So all the credit of my good performance goes to my father, who told me to focus on my current exam instead of focusing on the future. Great to know your views about what's your schooling journey and all. So like मानसी यहाँ पर जितने participants है वो ये भी जानना चाहेंगे कि like आपने कॉलेज में जाने के बाद वो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कैट्स का या फिर आपने पहले से ही एक अपना फोकस किया था कि नहीं मुझे कैट ही करना है एंड समथिंग लाइक दैट. अमित, एक्चुअली द थिंग इज, पहले तो किसी को भी पता नहीं होता कि कैट भी कोई एग्जाम होती है, और स्कूल में जब मैंने कॉमर्स लिया था तो मेरे को पता नहीं था कि कैट की एग्जाम होती है, और एमबीए के लिए आईआईएम्स स्पेशली बने हुए हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूट. सो कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा सीनियर्स से बातचीत करने के बाद समझ में आया कि अच्छा ऐसा कुछ कॉलेज भी है जो मतलब टॉप लेवल की परफॉर्मेंस के लिए, मतलब टॉप लेवल के बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, एकदम क्रीम लेवल को, और उनका करियर बढ़ाते हैं. तो आई गॉट टू नो अबाउट IIM ओनली आफ्टर माय सेकेंड ईयर in college, and then I started to prepare for CAT after that.
ओके, ग्रेट मानसी। तो लाइक आईएम के लिए बहुत सारे मिथ्स भी है एंड बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस भी है कि क्या क्या मुझे करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, लाइक प्रिपरेशन फ्रॉम कैट, वो सभी लोग जानना चाहेंगे। Actually, like I told you that I started preparing for CAT in second year. लेकिन उस टाइम पे मैंने सिर्फ इसलिए प्रिपेयर किया था क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि चलो सब जा रहे हैं तो अपन भी चलते हैं। बट IIM के बारे में आई हैड नो इन्फॉर्मेशन कि कैसा है, उनका प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का। सो द थिंग इज कि जो प्रॉब्लम है हमारे साथ अभी के जनरेशन में कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। नेट पे हम देखेंगे तो हर एक यूट्यूब चैनल पे अलग अलग वीडियोस है और वो यही बताएंगे कि हम IIM के लिए प्रिपेयर क्यों करें, कैसे करें। तो मेन फोकस शुड बी योर कैट। ट्राई टू स्कोर, जितना अच्छा स्कोर हो सकता है, जितना हाई स्कोर कर सकते हैं हम उतना हाई स्कोर करने पे फोकस करेंगे। और IIM को तो एक इंटरव्यू देने के बाद यू गेट एन कैट के बाद यू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM और उसके बाद इंटरव्यू दो। मतलब पहले GD होता था, हमारे साथ नहीं हुआ GD, PI हुआ और यू गेट IIM एडमिशन इन IIM। सो द थिंग इज कि फोकस ऑन कैट, उसमें क्या है, गेट टू नो अबाउट द सिलेबस, कैसे प्रिपेयर करना है। आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे मैं कैसे, मतलब यू शुड नो कि तुम्हारे स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, और उसके बाद तुम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे करना है, एंड देन जस्ट गो फॉर कैट, फोकस ऑन कैट। ऑसम। तो लाइक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ये सोचते हैं कि लाइक जब प्रिपरेशन करने के लिए हमें लाइक कोचिंग्स ज्वाइन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सेल्फ प्रिपरेशन ज़्यादा करना चाहिए, मुझे सेल्फ लर्निंग ज़्यादा करना चाहिए। वो कौन सा आप प्रीफर करें? एक्चुअली द थिंग इज कोचिंग में इतने सारे बच्चे होते हैं और एक टीचर इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट पे फोकस नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम खुद पे ज्यादा फोकस करें, हम हमारी सेल्फ स्टडी करें। और सेल्फ स्टडी करना ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्लासरूम में कुछ पढ़ के आ रहे हो और आप वो वापस पढ़ नहीं रहे हो तो आप वो भूल चुके हो। और दैट इज वेयर सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट। और एक्चुअली मैंने तो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। लाइक मैंने अपनी सेकेंड ईयर में कोचिंग ज्वाइन की थी, बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही ये कैट को क्रैक किया है। और मुझे यही लगता है कि सेल्फ स्टडी इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, तो हम उस पर काम आसानी से कर सकते हैं। तो आई थिंक सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा बेनिफिशियल है और वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली। तो जैसे कि आपने बोला कि सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइक कैट के प्रिपरेशन करने के लिए, रादर देन कि हम कोई कोचिंग जाए फिर वहाँ पे इतने सारे क्लासेस करें, फिर हम मेरे पास अपन के पास टाइम नहीं बचेगा ना फिर से वो प्रिपरेशन करने की। लाइक कोचिंग्स में क्या होता है ना, डेफिनेटली, मतलब हाँ, एक बहुत सारा टाइमिंग जो आपका होता है वो कोचिंग में ही चला जाता है। तो लाइक और अगर आपका कोचिंग अगर आपके घर से या फिर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से अगर आपका डिस्टेंस लगभग अगर 1 आवर 2 आवर का डिस्टेंस है, तो फिर तो वो 2 घंटे 3 घंटे तो आने जाने में ही आपका वेस्ट हो गया। तो देन उसके बाद कोचिंग जो क्लासेस होते हैं फिर आपके पास टाइम एग्जैक्टली। सेल्फ जो प्रिपेयर करने की बहुत कम बचती है। राइट। या सो मेरे आई हिसाब से कोचिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि वो एक पर्टिकुलर पाथ दिखाते हैं कि आपको ऐसे तैयारी करनी है। आपको एक मेंटर मिलता है जो आपको हेल्प करता है कि क्या करना है उसे, मतलब कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है और किस तरीके से क्रैक करनी है एग्जाम। तो अगर आप ये चीज़ें, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं तो फिर कोचिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऑब्वियसली। और अभी लाइक ऐसा ऑनलाइन जो अभी चल रहा है, लाइक सभी कुछ ऑनलाइन अवेलेबल्स भी है एंड आप स्टडी कर सकते हैं, एग्जैक्टली। बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स भी है। तो एट राइट। फर्स्ट तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अभी हम लोग को ज्वाइन जो किए लाइक वो फर्स्ट ईयर से है, समवन फ्रॉम सेकेंड ईयर, कुछ थर्ड ईयर से भी है। तो जी। ये सारे पार्टिसिपेंट्स का लाइक अभी बिगिनिंग्स है, अभी कॉलेज के बिगिनिंग्स है। तो अभी से इन लोगों का एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, लाइक अगर मुझे कैट क्रैक करना है तो? ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में अभी रिसेंटली एडमिशन हुआ है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। मतलब उतना लेवल का नहीं, डिफिकल्ट नहीं है जैसे हमको था। हम हमारा सब ऑफलाइन था, सब मतलब क्लासेस जाना पड़ता।
अब के लिए हमारे पास बहुत time है, 3 साल है हमारे, मतलब फॉर इंजीनियर्स 4 साल है, और जो बीकॉम या फिर बीबीए कर रहे हैं उनके लिए 3 साल है हाथ में। तो आई विल से कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, आप अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करें, आप बहुत रीडिंग करें, अलग अलग डाइवर्स जगह से रीड करें, क्योंकि आप जैसे रीड करेंगे आपकी नॉलेज बेस और आपको काफ़ी हेल्प होगी आगे बढ़ने में लाइफ में। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कैट जो आपको 3rd ईयर में देना है, आप खुद की ग्रोथ पे फोकस करें, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। यही मैं फर्स्ट ईयर के लिए एक जो स्ट्रैटेजी है वो देना चाहूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली कैट इज जस्ट एन एग्जाम। उसके बाद आपको अपनी पर्सनालिटी को ग्रोथ करना ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और 2nd ईयर जिनका भी 2nd ईयर शुरू हुआ है और वो शायद 2nd ईयर में ही कैट देंगे आई गेस, या फिर 3rd ईयर में कैट देंगे। तो अगर आपके पास अभी कम टाइम है, अगर आपकी कैट की एग्जाम 2nd ईयर में ही है, तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन द सिलेबस। देखो कि किस चैप्टर में से या किस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उस टॉपिक को सबसे पहले खत्म करो, उसे क्लियर एकदम अच्छे से पढ़ो। उसके बाद स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्मॉलर टॉपिक्स, और एक टाइम के बाद रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाता है, मेरे साथ ऐसा होता था काफ़ी। तो मैं यही करो सके क्वांट्स में एक टॉपिक का चलो, और एक हफ्ते बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन फिर से लगाओ। VARC में रीड करो, और DILR में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ज़्यादा सॉल्व करो। दिस इज फॉर 2nd ईयर। एंड फॉर 3rd ईयर जिन्होंने शायद से कैट दे दी है और या फिर वापस देंगे, तो यही है कि कैट पे फोकस करो। अगर आपको चाहिए कि आप अच्छे कॉलेज में जाओ, तो आपका कैट का परसेंटाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और दूसरी कोई चीज़ मैटर नहीं करती। और अभी हाथ में, मतलब अब तो कॉलेज भी खत्म होने वाला है, तो यू कैन लाइक गिव मोर टाइम टू कैट। सो आई विल अगेन सजेस्ट की फोकस ऑन कैट, ट्राई टू गेट अ गुड परसेंटाइल। ऑब्वियसली। तो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन एक होता है कि लाइक कैट का प्रिपरेशन तो करेंगे, एंड हमारी 10th एंड 12th की मार्क्स कितना ज़्यादा यूजफुल होगी इसमें, वो कितना एड अप करेगी, उसके बारे में राइट। बताइए। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि IIM का क्या प्रोसीजर होता है पहले। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर कोई कॉलेज को एम करना चाहते हो, तो आप उसका प्रोसीजर देखो नेट पे। जैसे IIM इंदौर 70% वेटेज देता है 10th-12th को, और बाकी जैसे IIM कोई कोड है वो उतना वेटेज नहीं देता। वैसे ही बहुत सारे अदर कॉलेजेस भी हैं जो सिर्फ कैट पे फोकस करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हो, अगर आपकी पीछे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर आपका 10th-12th अच्छा नहीं है, तो आप ट्राई करो कि आप सबसे ज़्यादा कैट में स्कोर कर सको, क्योंकि वही आपको आपके असली एम तक लेके जाएगा। क्योंकि जैसे मेरा 10th-12th अच्छा था, ठीक था, मतलब इट्स नॉट गुड बट इट वाज ओके। सो मुझे पता था कि मेरे को IIM इंदौर पर फोकस करना है, क्योंकि वो 10th-12th को ज़्यादा वेटेज देता है। और एट द सेम टाइम जैसे IIM कोई कोड है वो बहुत ज़्यादा वेटेज देता है कैट के परसेंटाइल को, तो मेरे को था कि उस पर इतना नहीं करना है। तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। अब अपने ऐसा है कि अब जो हो चुका है उसे तो भूल ही जाओ, कि अब 10th-12th को तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके कोई फायदा नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। इंस्टेड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज कॉलेजेस that give more importance to CAT than 10th-12th. So this would be my thought. ओके, तो आई थिंक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चंस भी आ चुका है, तो हम एक एक करके लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को। Sure. यस, आई थिंक जतिन का एक क्वेश्चन है कि लाइक 1 year was enough for the preparation. I think yes. Mostly people can crack CAT in 3-4 years. They like it depends upon your preparation strategy. It depends upon कि आप कितना hard work कर सकते हो, आप एक दिन में कितना हार बैठ के आप कितना ज़्यादा perform कर सकते हो. So I think 1 year is more than enough for preparation. Okay. Like I think
Yeah, Mansi. There's a question, what should we do to make our profile strong, which is required in shortlisting for PI? Okay. For PI, yeah. So, right. So, like I said, कि 10th 12th मैटर करता है, ग्रेजुएशन का परसेंटेज भी मैटर करता है पीआई में शॉर्टलिस्ट करने के लिए. और लाइक इफ यू हैव डन एनी प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए सीएस या फिर सीएफए या सीएमए, तो इट विल रियली हेल्प. लेकिन अभी अगर आप एकदम कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10th 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आप कैट के लिए जा रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको कुछ करना है तो डू एन इंटर्नशिप. फर्क नहीं पड़ता पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जस्ट डू एन इंटर्नशिप टू गेट एन आइडिया कि बिजनेस कैसा काम करता है. ठीक है, टू गेट एन आइडिया कि आप मतलब आप पीआई में बोल सको उस बारे में. ट्राई टू लाइक डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, focus on all those hobbies that you like all your hobbies. When I was in my when I was in college, I focused on cricket and I focused on various sports activities because I was interested in it. So I got certificates of district level. Our team won the district level competition tournament, and so it's basically in PI what matters is कि आप कितना बात कर सकते हो, आप कितना उनसे अच्छे से बात कर सकते हो. उनको लगना चाहिए कि हाँ इसके पास नॉलेज है, और वही मैटर करता है आई गेस. आई थिंक इम्पोर्टेंट ये भी है कि लाइक उनको ये भी लगना चाहिए कि लाइक आपने कितना किया एंड जो भी आपका सेक्टर्स में आपने किया उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है. लाइक जस्ट फॉर Yes. सेक कि अगर आपने एक इंटर्नशिप किया तो इंटर्नशिप के ड्यूरिंग आपने क्या क्या वर्क को किया है, वो उन लोग ज्यादा क्वेश्चंस करते होंगे. और पीआई में आपका कोई सर्टिफिकेट्स नहीं दिखता है कि आप कैमरे पे दिखा रहे हो कि ये सर्टिफिकेट है मेरे पास. जैसे हमारे टाइम पे किसी ने सर्टिफिकेट्स तो नहीं देखा था. इट डिपेंड्स कि आप मतलब वो क्या देखना चाहते हैं कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं. दैट इज द थिंग. ऑब्वियसली इंटर्नशिप का एक क्या होता है ना बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स के मन में ऐसा कुछ होता है कि इंटर्नशिप जैसे मैंने ज्वाइन किया एंड बस मुझे वो सर्टिफिकेशन मिल गया एंड ऑल, तो वो उसका कुछ फायदा नहीं है. राइट. क्योंकि ऑब्वियसली सच अगर में. आप इंटर्नशिप में अगर आप कुछ करते नहीं है खुद से, आप अपना जो भी है पोटेंशियल उसको देते नहीं है, तो फिर वो एक सर्टिफिकेशंस का आई थिंक आगे जाकर वैल्यू नहीं होता. क्योंकि जब आपसे पीआई में पूछे जाएंगे कि आपने इस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में क्या क्या किया, तो वो आपको बताना राइट. पड़ेगा. अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है लेकिन आपके पास नॉलेज है, जैसे बहुत सारे लोग बहुत रीडिंग करते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, किसी को स्टॉक मार्केट का बहुत नॉलेज होता है, और मतलब ये सारा नॉलेज बहुत मैटर करता है इंस्टेड ऑफ सर्टिफिकेट्स. तो आप बस इस पे फोकस करो कि आपके पास वो क्वालिटीज है क्या, आपके पास वो एक्सपीरियंस है क्या जो आप पीआई में बोल सको, आप खुद को एक अच्छे से प्रेजेंट कर सको कि हाँ आप एमबीए के लिए कैपेबल हो. दैट इज द थिंग. ओके फाइन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Sure. कैन कैट स्कोर हेल्प अस इन ग्रैबिंग अ सीट इन अब्रॉड कॉलेज? No, actually आई CAT थिंक सिर्फ इंडिया. या कंटिन्यू. हाँ, अगर आपको बाहर की कॉलेजेस में जाना है तो आपको जीमैट देना पड़ेगा फॉर एमबीए. ओके फाइन, आई थिंक getting questions solved already. How to multitask to prepare for different exams of similar syllabus, or should we focus for one exam only? Like I think this question is about different management exams, right? Yeah, Like yeah, SNAP and yeah. IFT and etc. So देखो, जैसे कैट का जो सिलेबस है वो एक अम्ब्रेला के जैसा है, उसका सारे एग्जाम का सिलेबस आ जाता है. सो इफ यू प्रिपेयर फॉर कैट यू विल डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व स्नैप का पेपर और अदर पेपर. नाउ कैट इज इन नवंबर, और उसके बाद ही मोस्टली ये सारी एग्जाम्स कंडक्ट होती है. तो आपके पास टाइम होगा लाइक 15 days और 10 days टू प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम ऑल्सो. सो आई थिंक स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट and focus only on CAT. Like if you focus only on CAT and then जब CAT का हो जाए तब आप बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका जो कॉलेज है जो आप पसंद करते हैं, आपको उस कॉलेज में जाना है और वो एक दूसरी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तब उस कॉलेज की तैयारी करें. इट्स सिंपल. One question from Muskan बट Singh. आई विल सजेस्ट. ओके. Yeah, so
या कंटिन्यू कर मानसी, लाइक आप जो बोल रहे हैं। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप कैट की प्रिपरेशन करें, क्योंकि कैट का सिलेबस बहुत बड़ा है और वो बाकी सारी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको ऐसे ही करवा देगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप कैट की प्रिपरेशन करें। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मुस्कान सिंह, हाउ टू मैनेज स्टडीज विद एंड MBA को study करिकुलर। I think it's not MBA study, it's I think preparation for CAT, or Muskan Singh is already in MBA. Taken MBA. Amit? या मानसी, so Okay, so I think she is asking about how to manage CAT हाँ, study लाइक and co-curricular. मुस्कान वांट्स टू आस्क दैट कि लाइक जो हमारी कॉलेज की स्टडीज है उनके साथ साथ मैं कैट का प्रिपरेशन कैसे करूँ। ठीक है, लाइक इफ यू, अगर मुस्कान, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो मोस्टली आपका कॉलेज खत्म होने वाला है, और आपका जो एक परसेंटेज है, आपका जो कॉलेज का परसेंटेज है वो अब चेंज नहीं होगा आपके लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस, लास्ट सेमेस्टर के परफॉर्मेंस आई थिंक। तो आई विल सजेस्ट कि आप मोस्टली अपना 60-70% ऑफ टाइम आप अपने कैट की स्टडी को दो और 30% ऑफ टाइम आप कॉलेज की स्टडी को दो। और ऐसा भी है कि मोस्टली जैसे मैं और मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे, हम लोग कॉलेज की स्टडी को उतना प्रेफरेंस नहीं देते थे एक टाइम के बाद, और क्योंकि कैट इज रियली इम्पोर्टेंट और कॉलेज का परफॉर्मेंस उतना मैटर नहीं करता जितना कैट का मैटर करता है। सो प्रायोरिटी आप कैट की स्टडी को दो। ऑब्वियसली और भी आगे हम क्वेश्चंस को लेंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट और भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि लाइक आपका जो कॉलेज का जर्नी था, उस जर्नी के आई थिंक आपने प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि बहुत आपने लेट से स्टार्ट किया था कैट की प्रिपरेशन, तो आई थिंक राइट, या तो कॉलेज में हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर कितना इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मोस्टली बच्चे कॉलेज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, कॉलेज की पढ़ाई को, लेकिन अगर आप एक, आपके पास एक एक्स्ट्रा करिकुलर है, जैसे मेरे पास क्रिकेट था, मैंने उस पर बहुत फोकस किया। तो मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट में टूर्नामेंट में गई थी ना, हमारी टीम जीती भी थी उसमें। तो मेरे पास एक अच्छा बात करने के लिए एक अच्छा टॉपिक था कैट के PI में, इंटरव्यू में। तो एक्स्ट्रा करिकुलर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करता है, आपकी स्किल्स डेवलप करता है, आपको बताता है कि टीम में काम कैसे करे, कम्युनिकेट कैसे करे, लीड कैसे करे कोई टीम को। और साथ में बहुत सारी और भी आपकी पर्सनालिटी में ऐड हो जाती हैं चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से। सो आई थिंक, और उतना जो वैल्यू एडिशन है वो कोई कॉलेज की स्टडी से नहीं हो पाता, क्योंकि इसीलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक इसीलिए एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। और अब आई विल सजेस्ट कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जितना कुछ होता है, जितने टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें जाके पार्टिसिपेट करिए, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अल्टीमेटली MBA इज ऑल अबाउट कि आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं, जो अच्छी बात है, पढ़ाई पे फोकस करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी दूसरी चीजें भी आनी चाहिए। ऑब्वियसली तो जब आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को ज़्यादा फोकस करना ही चाहिए कॉलेज स्टूडेंट्स को, बिकॉज कुछ कुछ जो होता है चीज जैसे कि कॉन्फिडेंस होता है आपका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, राइट, एंड लोगों से इंटरेक्ट करने का जो आपका कैपेसिटी होता है, तो ये आई थिंक किसी हम लोग के कॉलेज के कुछ सिलेबस में नहीं है। लाइक इसको आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करके ही आपको वो मिलेगा एग्जैक्टली। ऑब्वियसली। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी है वो ऑब्वियसली इस वेबिनार को जो सुन रहा है तो वही समझ अगर में। जैसे अभी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं हो रहा होगा इतना, क्योंकि कोविड है और कॉलेजेस शुरू नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोर्सेज करिए, मतलब वो कोर्सेज करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप कोर्सेरा से बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, तो ये आपकी पर्सनालिटी में भी ऐड होगा और आपकी प्रोफाइल को भी अच्छा स्ट्रांग बनाएगा। ऑब्वियसली बहुत सारे सेगमेंट है, लाइक आफ्टर MBA में भी जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, लाइक फाइनेंस है, HR है, राइट, सेल्स मार्केटिंग है, बहुत सारे सेक्टर्स
तो आई थिंक Right. ऑब्वियसली जितने भी सेक्टर्स है आपको, तो ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए। तो वो इंटरेस्ट लाने के लिए Right. आई थिंक उस सेक्टर में मुझे कॉलेज लाइफ में ही कुछ कर लेना चाहिए, लाइक जो भी इंटर्नशिप होते हैं उस फील्ड में, ताकि वो इंटरेस्ट का हम लोग एक्सप्लोर और ज़्यादा कॉलेज में कर सकते। ये कितना सही है? मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा इंटरनेट में आपको बहुत एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने एचआर के बारे में कि ये ग्रोथ कर रही है तो आप उसमें जाओ। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप सारी डोमेन्स को एक बार देखो, एक्सप्लोर करो, उसमें देखो कि क्या काम होता है, कैसे होता है। थोड़ी रिसर्च करो, मतलब पढ़ो उस बारे में, और देखो कि आपका इंटरेस्ट किस साइड लाई करता है। और रही बात एमबीए में चूज करने के लिए, जैसे अगर आप नॉर्मल एमबीए कर रहे हैं तो आपको सेकेंड ईयर में इलेक्टिव चूज करना पड़ता है, और उसके पहले फर्स्ट ईयर में आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे उस दूसरे दूसरे डोमेन्स के बारे में, जैसे मार्केटिंग, एचआर एक्सेट्रा। playing background तो music. आपको ये मानसिक कंट्री या सो आपको एक ग्रोथ, लाइक जब आप सारे एक बार एक्सप्लोर कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, और वो हेल्प करेगा। ऑब्वियसली। लाइक क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स बस ऐसे सुनते हैं कि सेल्स होते हैं, मार्केटिंग होते हैं, एचआर होते हैं, बट एक्चुअली उसमें वर्क कैसे होते हैं वो बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो वो ऑब्वियसली आपको पता तभी चलेगा जब आप उस चीज़ों को कीजिएगा और अपने पोटेंशियल को दीजिएगा, ऑब्वियसली राइट। तभी आपको वो समझ में आएंगे वो चीज़ें है क्या। लाइक और बहुत सारे मोस्टली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी आपको पता चलता है। जैसे जब जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे लोगों से बात करना पसंद है और उनको मतलब मेरे को लीड करना आता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, शायद मुझे एचआर में जाना है या फिर मार्केटिंग में जाना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स आपको बहुत ग्रो करेंगे। तो लाइक हम बात करें, इससे हमको एक चीज़ याद आ गया, लाइक कि बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं स्टार्टिंग में, कि लाइक बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं चाहते हैं, उनको एकदम राइट। एज अ फियर लगता है लोगों से कैसे इंटरेक्ट करें एंड ऑल। और तो ये कैसे इम्प्रूव कर किया जा सकता है, इसके बारे में आपका कुछ टिप्स? जैसे जब मैं 12th में थी तब मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, लोगों से बात करना नहीं आता था, और मतलब बहुत ज़्यादा जैसे आपने बोला वही, मतलब बिल्कुल भी बात करना नहीं आता था और पसंद ही नहीं था कि लोगों से बात करूं मैं जाके। पर जैसे मैं कॉलेज में गई, मैं हॉस्टल में थी, अपने 3 साल कॉलेज के मेरे हॉस्टल में गए, तो आई गेट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं लोगों से बात करूं और मैं उनके साथ ग्रो करूं। और एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों को हैंडल करो, आप लोगों से बात करो। तो पर जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप स्टार्ट करो बात करना, क्योंकि अगर आपको एमबीए करना है तो आपको ये अपनी वीकनेस को खत्म करना ही होगा। और द बेस्ट थिंग इज कि आप बातें करो, आप किसी से भी, कोई भी स्ट्रेंजर मिल जाए आप उससे बात करो। आप सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है कि मतलब इतना बढ़ गया है कि आप कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर से ऐसे ही मिल सकते हो। तो आई सजेस्ट कि अपने फ्रेंड्स से और बाकी लोगों से, टीचर्स से, प्रोफेसर से, और मतलब जितने भी लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हो आप उनसे बातें करो। ऑब्वियसली। तो आई थिंक जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका लीडरशिप क्वालिटी भी इंक्रीज होता है, आपको लीड करना कैसे आपको पता राइट। चलता है। तो इंटरेक्शन तो होना ही यस। चाहिए, लाइक इंट्रोवर्ट तो सब होते हैं ऑब्वियसली। मैं भी अपने स्टार्टिंग जर्नी में फर्स्ट ईयर की बात अगर करूँ तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। तो लाइक ऑब्वियसली ये सब तो आपको जो आपका वीकनेस है उस पर तो काम करना पड़ेगा, ताकि आप आगे जिस भी सेक्टर में जाए उसमें आप लीड कर सकें। लीड करने के लिए आपको इंट्रोवर्ट वाला जो है वो पोर्शन हटाना पड़ेगा। मतलब आप किसी भी सेक्टर में जाके ये थोड़ी ना बोल सकते कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं मतलब मैं चेंज नहीं हो सकती, मैं ऐसी ही हूँ। तो आप मेरे को ऐसा नहीं होता। वो लोग बेस्ट लोगों को चूज करेंगे। तो अगर आपको चाहिए कि आप वो लोग आपको चूज करें, आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसे ही कहते हैं कि हम जो थे उससे हमारी बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होके हम कुछ और बन गए, जो हम बहुत बेटर है पहले पास्ट मानसी से, मतलब पास्ट जो भी है उनसे। ऑब्वियसली अगर हम कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो ये तो बोल ही नहीं सकते लाइक आई हम चेंज नहीं होंगे, मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ। क्योंकि अगर आपको कंपनी में हाँ, एग्जैक्टली। फिट बैठना है
तो उसके लिए आपको बहुत सारे चेंज आपके अंदर लाने होंगे एंड बहुत सारे सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे कंपटीशन भी आजकल इतना बढ़ गया है। ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहा है, आपके कॉम्पिटिशन से बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बेटर करने के लिए रेडी है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रेडी है। तो ऑब्वियसली आपको उनको बीट करने के लिए तो उनसे तो ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा ना, राइट। ऑब्वियसली। अब कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग लेते हैं चैट बॉक्स से, कुछ क्वेश्चंस लेंगे चैट बॉक्स से। लाइक डिड ऑल कॉलेजेस इन इंडिया टेक पीआई आफ्टर कैट सिलेक्शन? I think yes. Mostly all the colleges take PI. मतलब जो मेन कॉलेजेस है बड़े, वो तो लेते ही हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कैट का जो सिलेबस है वो आपको प्रिपेयर करवाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, वो आपकी रीडिंग हैबिट को डेवलप करवाता है, आपको लॉजिकली कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है वो भी सिखाता है, और क्वांट्स जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में वो भी सिखाता है। लेकिन ये सिर्फ इतनी 3 चीज़ें सब कुछ नहीं है, इसलिए हमें पीआई देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी है, असली पर्सनालिटी पीआई में ही सामने आती है कि हम कैसे हैं, हमारी बात करने का तरीका कैसा है, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स है कि नहीं। तो आई थिंक इसीलिए पीआई लेना इम्पोर्टेंट है, और मोस्टली कॉलेजेस लेते भी है। One question from Ayan Datta, like how to finance enormous MBA fees at IIM? Do IIM facilitate a scholarship for their PGP student? बेसिकली आई एम हमें लोन मिल जाता है, हमें स्कॉलर लोन फ्रॉम वेरियस कॉलेज, वेरियस बैंक्स। सो आई थिंक it is important, it is not easy, but to finance it you can take a loan. Apart from this, I am provide scholarships, and there is particular procedure for taking any scholarship, and I think you should like check the websites of different IIMs, and then you will get to know about it. Obviously, तो like IIM में तो ऑब्वियसली लाइक लोन्स के जो भी है सिनारियोज, तो वो कुछ ऐसे है कि IIMs को बहुत प्रेफरेंस मिलता है लोन के सेगमेंट से, क्योंकि अगर आप IIM में Right. हैं तो बैंक भी ये सोचता है कि लाइक इनको लोन देने में मुझे कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर 2 years ऑब्वियसली मुझे कुछ कम बैक मिल रहा होगा। तो Right. बैंक्स के लोन्स में कोई इशू नहीं होती है। स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो स्कॉलरशिप की क्या लाइक कॉलेज कुछ स्कॉलरशिप देती है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका एनुअल इनकम कम है या फिर समथिंग लाइक दैट? हाँ, जैसे इनकम बेस्ड भी स्कॉलरशिप रहती है, जैसे लोगों की जिनकी इनकम कम है उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है कि आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसके प्रोसीजर में, तो उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये नीड बेस्ड हो गई, फिर जो मेरिट में रहते हैं बच्चे उनको भी एक स्कॉलरशिप मिलती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती, मिलती है। आपको प्रोसीजर, उसका एक प्रोसीजर रहता है, और आप उसके प्रोसीजर को जान सकते हैं। सारे आईएम की साइट जाइए, जिस भी आईएम में आपको इंटरेस्ट है आप उसे देखिए, और आपको समझ में आएगा कि कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फी की अगर बात करें तो फी कितने हैं IIM के? लाइक सारे आईएम्स की फ़ी हाई रहती है, जैसे लाइक आईएम इंदौर की फ़ी है 17.5 lakhs, और अगर आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं उसमें, जैसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो हम लाइक डेली यूज़ के लिए हमारे एक्सपेंसेस है, तो इट वो बढ़ के 20 लाख हो ही जाती है, तो उसमें कोई बात नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें बैंक लोन दे देता है इजीली। सो बाकी अगर हम दूसरे आईएम्स की बात करें तो जैसे कोड़े की आई थिंक फीस इज अराउंड 18.5, और सबकी अलग अलग फीस है, और एवरेज इज आई थिंक 20 या फिर 19, ऐसा कुछ है, 19 lakhs। ओके फाइन। सो प्रिपरेशन करने के लिए, कैट की प्रिपरेशन करने के लिए बेसिकली हमें किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बिकॉज कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिनको हम लोग कम, लाइक मुझे ये बोलना, मेरे बोलने का सेंस है लाइक बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे हम लोग बहुत कम टाइम दे के भी अच्छा कर सकते हैं, एंड बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे हमको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो आई थिंक आपके एंड से वो कौन कौन से सब्जेक्ट है? जैसे
ये तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सा बता सकती हूँ सब्जेक्ट कि ये इजी है। ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है। जैसे जब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे मैंने कहा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जैसे मैं 12th में थी, तो मैंने 11th में कॉमर्स इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं चाहिए था। सो मेन रीजन वाज ओनली दिस कि मुझे मैथ्स नहीं करना और मुझसे नहीं बनता, इसलिए मैं कॉमर्स ले रही हूँ। तो मेन बात ये है कि जैसे इससे मुझे समझ में आया कि मेरा क्वांट्स अच्छा नहीं है, मुझे उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्वांट्स स्पेसिफिकली। और उसके बाद जैसे मेरा स्ट्रेंथ था VARC वर्बल, क्योंकि मैं पढ़ते रहती थी। आई यूज्ड टू रीड वेरियस बुक्स एंड मतलब उसमें मुझे बहुत हेल्प होती थी। तो मुझे समझ में आया कि VARC पे मैं कम टाइम दूंगी तो चलेगा, लेकिन मुझे क्वांट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे अब कोई भी इंजीनियर है, उसका क्वांट्स अच्छा होता है, उसका DILR अच्छा होता है, उसका VARC खराब होता है, तो उसे VARC पे फोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये इंडिविजुअली, ये कोई एक इंसान आपको नहीं बता सकता कि आपको किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये आप खुद देखिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप उस पे जो आपकी वीकनेस है आप उस पर फोकस करिए और आप वैसे ही ग्रो करेंगे। तो लाइक एक और क्वेश्चन है, लाइक DILR is a pain in a neck. I have no experience in solving DI or LR shapes. How to kick start this section and how to build on this section? So Shiva, I think like I have also had this kind of feeling कि DILR नहीं बन रहा, and वो नहीं बनता था मुझसे, सीरियसली बताऊँ तो। सो मैंने बहुत सारे सीनियर से बात किया और बहुत सारे टीचर्स प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं कोचिंग में, मैंने उनसे बात की। भले ही मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, बट आई यूज्ड टू गेट गाइडेंस फ्रॉम दोज मेंटर्स। सो मेन थिंग अबाउट DILR इज कि हमने इसे कभी नहीं पढ़ा। हमने 10th में या स्कूल में हमने क्वांट्स को पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, हम इंग्लिश पढ़ते ही हैं। पर DILR ऐसा है कि हम कभी नहीं पढ़ते, हमको पता ही नहीं कि ये एग्जिस्ट भी करता है। तो इसका एक सॉल्यूशन बहुत इजी है। स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। लाइक एक बुक थी, मेरे एक सर ने मुझे प्रिफर की थी, इट वाज वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग फ्रॉम RS अग्रवाल। अगर आप सुन रहे हैं तो आप लिख लीजिए इसे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग फ्रॉम RS अग्रवाल। अब इसमें आप नॉर्मल टॉपिक्स को सॉल्व करिए, ब्लड रिलेशन, मतलब ये सारे टॉपिक्स कैट में नहीं आते, लेकिन ये आपको प्रिपेयर करवाएंगे कैट के लिए। तो आप लिख लीजिए कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ओके ओके, ब्लड रिलेशन हो गया, और जितने भी टॉपिक्स उसमें दिए हैं आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए। और रेगुलरली ये आपका बेसिक पढ़ाएंगे, ये आपको बेसिक आपका एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इसके बाद आप ट्राई करिए कि आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल आपको नेट पे मिल जाएगा PDF में फ्री में, तो आप उसमें से सॉल्व करने का कोशिश करिए एकदम बेसिक टॉपिक वाइज। जो भी कोई जैसे कोई भी कोचिंग है, जैसे टाइम है, तो उन्होंने एक ऐसा मटेरियल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने एकदम अच्छे से बांटे हुए हैं उनके टॉपिक्स। जैसे अगर DILR की बात करें तो टेबल हो जाता है, चार्ट्स हो जाते हैं, बार ग्राफ हो जाता है, लाइन लाइन चार्ट हो जाता है। तो तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए एकदम बेसिक। एकदम आपको एकदम टॉप लेवल की सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एकदम बेसिक सॉल्व करिए। और आप ये स्ट्रेटेजी 10 या 20 दिन तक आप ये सॉल्व करते रहिए। एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ मेरा बेसिक एकदम स्ट्रांग हो चुका है और मुझे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मेरे को बेसिक में तो आता ही है, मैं सॉल्व कर लूंगा। तो आगे आप बढ़िए। कैसे, अब आप ट्राई टू सॉल्व थोड़ा हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन। वो आपको कहाँ से मिलेगा? आप अरुण शर्मा एक बुक है जो आपको PDF। ఓడలేడు కక్కుసి हेलो, Yeah, Mansi, continue. या सो अरुण शर्मा एक बुक है, उसमें भी आपको थोड़ा अच्छा हाई लेवल का मटेरियल मिलेगा। अरुण शर्मा फॉर DILR आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। और उसके बाद आप अरुण शर्मा को कर सकते हैं सॉल्व। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी अरुण शर्मा सॉल्व करिए, आप देखिए आपको टॉपिक कौन सा अच्छा लगता है वो उठाइए, आप सॉल्व करिए। आप 10 या 20 क्वेश्चन लगाइए बैठ के, तो आपका एक और थोड़ा एडिशन हो जाएगा आपके बेसिक्स में। अब आई विल सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए। ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाइक फ्रॉम 1991 टू 2020। लाइक आई विल सजेस्ट कि आप पहले 2015 से 2020 तक के सॉल्व करिए और उसके बाद आप 1991 से 2020 के फिर से सॉल्व करिए।
आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी ऐसा कोई सेट होगा जो ऑप्शन नहीं बनेगा। तो आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करिए खुद की, आप किस तरह आपकी स्ट्रेटेजी जो है आप उसको ऑर्गेनाइज करवाइए। आप पहले बेसिक करिए, फिर थोड़ा हाई लेवल, और फिर एकदम अल्टीमेटली कैट का लेवल, एंड आई थिंक दिस विल रियली हेल्प यू। ऑब्वियसली। तो क्या होता है ना कि लाइक स्टूडेंट लोगों को पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन जो भी आपके स्टडीज में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स का क्या होता है ना कि राइट। लाइक स्टार्टिंग से ये होता है, पेशेंस नहीं होता, लाइक मुझे बस एक बार में करना है, ऐसे करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पर डे का हैबिट्स जो है, वही अगर रेगुलरिटी होगा स्टार्टिंग में, अगर जो भी फर्स्ट ईयर में है स्टूडेंट्स या फिर सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में, तो वो 10 to 20 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होगा वही एट द एंड उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जो भी कीजिए लाइक डेफिनेटली। वो एक पंक्चुअलिटी मेंटेन होना चाहिए, लाइक आज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कल छोड़ दिए, ऐसा वो एक मेंटेन होना चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैट के प्रिपरेशन में कि आप कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज 8 घंटे पढ़ लिया और आप कल कुछ नहीं पढ़ रहे, ये तो होना ही नहीं चाहिए। आप आज 2 घंटे पढ़िए और कल भी 2 घंटे पढ़िए, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज करिए आपने क्या पढ़ा। जैसे जैसे कैट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, आप इसमें रिविजन करना पॉसिबल, मतलब जैसे कोई थियोरेटिकल होता है तो आप पढ़ लेते हैं उसको, लेकिन कैट में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। आप ट्राई टू आप सॉल्व करिए पहले वाले क्वेश्चन जो आप एक बार सॉल्व कर चुके हैं, या फिर उसी तरह के दूसरे क्वेश्चन आप नेट पे सर्च करिए और वैसे सॉल्व करिए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली। एट लास्ट आपसे ये पूछना चाहिए लाइक कुछ कॉलेज का आपका कुछ मेमोरीज, ऑब्वियसली अभी ये एमबीए वाले में तो आपके आगे का मेमोरीज बनेगा ही, तो लाइक एक कॉलेज का प्रीवियस वो क्या है, कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहिए। कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, मतलब हर एक दिन एक स्पेशल मेमोरी जैसा होता है। हम ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, और मतलब 10th के बाद 10th में ही मैंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया और 12th में किया, बाकी मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ अपने पूरे लाइफ में। तो हम क्लास में बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, और कॉलेज में भी सेम। जब लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर टूर्नामेंट्स लाइक क्रिकेट और बाकी फुटबॉल के लिए, तो उस टाइम पे व्हेन वी यूज्ड टू विन द टूर्नामेंट, और उसकी हर एक मेमोरी बहुत स्पेशल है। और मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं और जिनसे अब बात होती है तो लगता है कि यार वो भी अच्छे दिन थे, कहाँ ये कोरोना आ गया और सब खत्म हो गया। तो हॉस्टल डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत प्रीशियस थे मेरे लिए, क्योंकि वो एक रीजन था कि मेरे अंदर कितना ग्रोथ हुआ है। तो आई थिंक कि हॉस्टल लाइफ रियली इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए भी, हर इंसान के लिए। हॉस्टल एक बार किसी भी इंसान को हॉस्टल लाइफ जीना चाहिए, वो सरवाइव करना सिखाती है। ऑब्वियसली हॉस्टल लाइफ के तो एक अलग ही मेमोरीज होते हैं एंड बहुत सारे उनके ये होते हैं। राइट। एंड हॉस्टल लाइफ में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, लाइक कैसे टाइम मैनेजमेंट, लाइक 9 बजे लाइक 9 AM में उठ के फिर 9 5 से क्लासेस एंड ऑल। तो ये सब तो इंजीनियरिंग में तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत राइट। कुछ मैनेजमेंट सीखते हैं। लाइक इंजीनियरिंग में भी एक ऐसा होता है सिचुएशन कि वो राइट। मैनेजमेंट खुद ब खुद अंदर से आ जाता है, लाइक कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि इतने हैप्टिक शेड्यूल एग्जैक्टली। होते हैं ना, तो उसमें मैनेज करना एग्जैक्टली। ऑब्वियसली एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिफोर टेकिंग आवर नेक्स्ट स्पीकर चारूप्रीत कौर, लास्ट क्वेश्चन मानसी आपसे कि लाइक आप कुछ और भी पार्टिसिपेंट्स को लाइक एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो कैट की प्रिपरेशन करता मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। और मुझे मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मेरे लिए भी स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। आप स्टार्ट करिए, खुद को मोटिवेट करिए रोज पढ़ने के लिए, और आप एंड के रिजल्ट पे फोकस मत करिए, आप फोकस करिए अपने प्रोसेस पे, क्योंकि ये प्रोसेस आपको बहुत कुछ सिखाएगी, ये आपको बहुत ग्रो करेगी। और भले ही अगर आपका नहीं आता उतना अच्छा परसेंटाइल, पर अगर आपने इस प्रोसेस में अपना 100% दिया है, तो आप लाइफ में कहीं ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एंड रिजल्ट, focus on your hard work and keep it and do it, just do it. है? ऑब्वियसली बहुत कुछ पार्टिसिपेंट्स का सीखने का ओकेजन मिला आपसे मीटअप करके। तो थैंक यू Yes, मानसी फॉर thank you टुडे Amit. वेबिनार। या ऑब्वियसली मेक श्योर कि हम Thank you लोग Amit for calling नेक्स्ट me भी कुछ here. करता है। ऑब्वियसली थैंक यू मानसी। Sure, sure. Thank you, bye. बाय। So participants, wait for our next speaker Charupreet Kaur.